ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے سرخیاں۔ جموں کشمیر میں اعلیٰ درجے کا ریشم تیار کرنے کی کافی گنجائش موجود، انتظامیہ اس سیکٹر کو ترقی دینے کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ، LG منوج سنہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں کر رہے ہیں 5G خدمات کا آغاز۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل انل چوہان نے دفاعی عملے کے دوسرے سربراہ کا سنبھال لیا عہدہ، اور یدی پورہ پٹن میں جیش محمد سے وابستہ 2 ملیٹنٹ فورسز کے تصادم میں ہلاک۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں زرعی شعبے اور اس سے منسلک سیکٹروں کی ترقی کو لے کر کوششیں جاری ہیں۔ سری نگر میں ایک ورکشاپ سلک سمگرا اینڈ بیانڈ کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے LG نے کہا کہ اس وقت جموں کشمیر میں تقریباً 27,000 کنبے سلک سیکٹر کے ساتھ جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ سلک سمگرا یوجنا سے یقیناً ان کو نئی طاقت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں اعلیٰ درجے کا ریشم تیار کرنے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ موصوف نے کہا کہ مرکزی سطح پر سلک سیکٹر کو فروغ دینے کی طرف کافی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس سیکٹر کی ترقی کے لیے کئی اقدامات پر عمل درآمد جاری ہے۔ موصوف نے کہا کہ یہاں پچھلے کئی برسوں سے یہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ گنجے اب ریشم سے وابستہ افراد کو خود کفیل بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس ورکشاپ کی بدولت سلک سیکٹر سے وابستہ لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے اور سرکاری اسکیموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے کرشی وگیان کیندروں کا رول کافی اہم ہے۔ LG نے کہا کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کا کسان بھی خوشحال، ترقی یافتہ اور خود کفیل ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں کل صبح 10 بجے 5G خدمات کا آغاز کریں گے۔ اس ٹیکنالوجی سے انٹرنیٹ اور تیز رفتار ڈیٹا بلا رکاوٹ فراہم ہوگا اور انٹرنیٹ کی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اس طرح 5G سروس سے انتہائی قابل انحصار مواصلات کی سہولت فراہم ہوگی۔ مواصلات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت کا منصوبہ ہے کہ 2 سال کے اندر 5G خدمات پورے ملک میں فراہم کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 5G خدمات کی فراہمی کے لیے تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کا افتتاح کیا، جو 21 کلومیٹر والی مشرق مغرب راہداری اور 19 کلومیٹر شمال جنوب راہداری پر مشتمل ہے۔ احمد آباد میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے وندے بھارت ایکسپریس اور احمد آباد میٹرو سے سفر کیا، جو چند منٹ کا سفر تھا، لیکن یہ فخر کے لمحات تھے۔ تیز رفتار شہری ترقی کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ گاندھی نگر احمد آباد اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح 2 شہروں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے مختلف 2 شہروں کو گجرات میں فروغ دیا جا رہا ہے۔ لوگ ابھی تک نیو یارک، نیو جرسی کے بارے میں بات کرتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرا بھارت پیچھے نہیں چھوٹ سکتا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے گاندھی نگر اسٹیشن سے آج نئی اور جدید کی گئی وندے بھارت ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس ٹرین سے ملک کی تیز رفتار ترقی کی عکاسی ہوتی ہے۔ ناظرین، خبرنامہ جاری ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ بل بھرنے کے پہلے تو آئے گی نا۔ سو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ بل ہو رہا ہے۔ چل اپنا کارڈ دے۔ پن دے۔ RBI کہتا ہے اپنا پن، OTP، CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کو نہ دے۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کرے۔ ہاں، یہ کھانے کی چیمپئن شپ تھی کیا؟ RBI کہتا ہے جانکار بنی، چوکنے رہیں۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل انل چوہان نے دفاعی عملے کے دوسرے سربراہ کے طور اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے انہوں نے قومی جنگی یادگار پر شہیدوں کو خراج پیش کیا۔ انہیں ساؤتھ بلاک کے لان میں فوج کی 3 شاخوں کے ذریعے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر فوج کی 3 شاخوں کے سربراہان اور مسلح افواج کے دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل چوہان نے کہا کہ بھارتی مسلح فوجوں کے اعلیٰ ترین عہدے کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے پر انہیں فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے طور فوج کے 3 شاخوں کی امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ موصوف نے کہا کہ ہم سب چیلنجز اور مشکلات پر مل کر قابو پائیں گے۔ واضح رہے، لیفٹیننٹ جنرل انل چوہان فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے۔
पट्टन इलाके के यदीपोरा गांव में फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस जराये के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फौज की मुश्तरका पार्टी ने वहां मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी आखिरी इत्तलात मिलने तक शनाख्त की जा रही थी। कार्रवाई के हवाले से SSP बारामुल्ला रईस मोहम्मद बट ने कहा कि मारे गए मिलिटेंट शुमाली कश्मीर में जारी फौज की अग्निवीर रैली को निशाना बनाना चाहते थे। SSP ने कहा कि पुलिस को इस हवाले से अहम सुराग मिले थे और फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके मिलिटेंटों के अजाइम को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि मारे गए मिलिटेंटों से 1 राइफल, 3 मैगजीन और मैगजीन समेत 1 पिस्तौल भी बरामद किए गए। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें। पुलिस और फौज ने गुरेज बांडीपोरा के नौशहरा नाड़ इलाके में भारी मिकदार में हथियार और गोली बारूद बरामद किया है। इस सिलसिले में कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से जारी किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान 7 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल, 21 AK मैगजीन, 13 ग्रेनेड, गोलियों के 100 राउंड और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया है। पुलिस ने इस हवाले से बाज़ाब्ता मामला दर्ज किया है। सेहत और तिब्बी तालीम के इंतजामी सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार ने आज शिमाली कश्मीर का दौरा किया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला और हंदवाड़ा के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान मौसूफ ने इन कॉलेजेस में इस वक्त जारी तामीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों से कहा कि वो तामीराती काम में सूरत लाएं। मौसूफ ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मरीजों को आला दर्जे की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रहें। ICAR के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंगला राय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़राई सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने के लिए वसाइल पूरी तरह मौजूद है। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर में मरबूत ज़राई पॉलिसी मुरतब करने के लिए UT सतह की एपेक्स कमेटी की दूसरी मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे फसल उगाने की काफी गुंजाइश मौजूद है जिनकी इक्तिसादी एतबार से काफी अहमियत है। वाज़ेह रहे कमेटी ने 3 दिन की इस मीटिंग में जो इख्तिताम पजीर हुई में कई अहम अमूर पर तबादुल ख्याल किया और 100 से ज्यादा मुतल्लिक अफसरान ने इसमें शिरकत की। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई, सुकास्ट जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर JP शर्मा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डलू ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर अटल डलू ने कहा कि UT सरकार इस बात की कायल है कि यहाँ ज़राई सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सरकार ज्यादा से ज्यादा सरमाया लगाने की मुतमन्नी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने श्रीनगर के एक स्कूल के चंद बच्चों में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के हवाले से कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये दरमियाना दर्जे की वायरल डिजीज है। सिर्फ इस बीमारी में मुब्तला बच्चों को अलहदा और साफ सुथरा रखने की जरूरत है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज दरगाह शरीफ हजरत बल में हाजिरी दी। उनके हमरा कॉर्पोरेशन के अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियर भी थे। इस मौके पर उन्होंने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में दरगाह शरीफ हजरत बल में किए जा रहे इंतजामात को हतमी शक्ल दी। उन्होंने सभी मुतल्लिका अफसरान से कहा कि वो दरगाह शरीफ में ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। उन्होंने दीगर अहम ज़ियारतगाहों और बुकाजात में भी ज़ायरीन की सहूलत के लिए सभी दरकार इकदाम करने की हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा है कि वक्त तकाजा है कि ऐसे अनासिर के हरबों को नाकाम बनाया जाए जो कश्मीरियों को मुनकसिम करने की कोशिशों में मसरूफ है। पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को यहाँ के अवाम के एहसासात और मजमून की कोई फिक्र नहीं है और वह जमीनी हकायक और असल मसाइल की तरफ तवज्जो देने के बजाय अवाम दुश्मन पॉलिसियां और फैसले करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले का कोई आईनी और जमहूरी जवाज नहीं है। मिलते हैं एक और वक्फे के बाद। फिर से शॉपिंग? अब्बूजान आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अब पेश है बाकी खबरें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने वर्करों से कहा है कि वो UT में पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए। मौसूफ ने आज कपवाड़ा का दौरा किया और वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि वो बारामूला में वजीर दाखिला की रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुकर्रर वक्त पर चुनाव होंगे।
मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 218 करोड़ 52 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34 लाख 21 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5000 कोविड मरीज सेहतियाब हुए, जबकि इस मुद्दत के दौरान तकरीबन 4000 नए मामला दर्ज किए गए। सरेदस्त मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतियाबी की शरह 98.73% है। बुलंदपाए वली कामिल हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स आज अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में उनके आस्तान आलिया वाक़ा ख्वाजा बाजार नौहट्टा में हुई, जहां बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने सुबह सवेरे खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की मजलिस में शिरकत की। आस्तान आलिया में बड़ी तादाद में नमाज जुमा और ख्वाजा दिगर में भी अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर इमाम खतीब प्रोफेसर मोहम्मद तैयब कामली ने हजरत नक्शबंद साहब रहमतुल्लाहि अलैह के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। वादी की दीगर खानकाहों में भी उर्स के हवाले से खास तकरीबात का एहतमाम हुआ। समाजी बहबूद महकमे ने आज डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स पुलवामा में एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने खत इफलास से वाबस्ता 18 जिस्मानी तौर खास अफराद में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इन जिस्मानी तौर खास अफराद से इजहार ख्याल करते हुए समाजी बहबूद महकमे की इस पहल की सताइश की और कहा कि इसकी बदौलत जिस्मानी तौर खास अफराद को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा ऐसे जानकारी प्रोग्रामों का एहतमाम करे। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा कई तकरीबात का एहतमाम कर रहा है। इस सिलसिले में यूटी के दोनों डिवीजन से वाबस्ता तलबा ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग श्रीनगर में यूटी सतह के मजमून नवीसी, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, सेमिनारों और दीगर सरगर्मियों में शिरकत की। इस दौरान महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा इंजीनियर दीप राज भी इस दौरान मौजूद रहे। श्रीनगर के एक मकामी स्कूल में आज से इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस कॉन्फ्रेंस 2022 शुरू हुई। आज पहले रोज 100 से ज्यादा नौजवानों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की बदौलत पूरी दुनिया के नौजवानों को एक दूसरे तक अपनी महारत, सलाहियत और ख्यालात पहुंचाने का मौका फराहम होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में 68वीं कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश कर रही हैं। मुमताज अदाकारा आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में उनकी गैर-कदर खिदमात के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से नवाजा जा रहा है। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अदाकारी और सामीन को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के लिए मुख्तलिफ ज़ुमरों में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कोशिश की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।